ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش ریڈیو نیوز ریل ہفتے رفتہ کی خاص اور اہم خبروں کے خلاصے پر مبنی پروگرام ریڈیو نیوز ریل۔ سامعین آداب، نیوز ریل کا تازہ شمارہ لے کر میں شبیر الزماں۔ ہمارے آج کے شمارے میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2024 کو لوک سبھا کی منظوری۔ کرگل وجے دیوس کے موقع پر دراس میں جنگی یادگار پر شاندار تقریب منعقد۔ سری نگر میں 77ویں اسٹیٹ لیول میگا روزگار میلے کا انعقاد۔ کشمیر وادی میں تیار کی جانے والی گھاس کی چٹائی وگو کی وزیر اعظم نے کی من کی بات پروگرام میں پذیرائی، اور موسمی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے اقدامات کو فوری عملی جامہ پہنانے کی ضرورت۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ پارلیمنٹ کا مانسون کا اجلاس 20 جولائی سے اپوزیشن جماعتوں کی ہنگامہ آرائی کے ساتھ جاری ہے۔ لوک سبھا نے پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2024 کو منظوری دی ہے۔ اس بل کا مقصد پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے۔ یہ بل مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے 27 جولائی کو پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں پیش کیا تھا۔ Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024۔ اس سے پہلے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے طالب علموں کے احتجاج کے پیش نظر استعفیٰ دے دیا۔ اب پرہلاد جوشی نئے مرکزی وزیر تعلیم ہیں۔ دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد سرکار سے ہوئی بات چیت کے بعد سی جے پی نے اپنا احتجاج واپس لیا اور کہا کہ ان کی تینوں مانگیں مان لی گئی ہیں۔ یہ ہیں سی جے پی کے ترجمان سوربھ داس۔ تمام مانگیں جو ہماری تھی وہ مان لی گئی ہیں، تو ہم امیڈیٹ افیکٹ سے پروٹیسٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ وڈرا کریں، پیسفلی اپنے گھر واپس جائیں، اور آگے کی جو بھی ہماری رنگنیتی ہوگی یا بات چیت ہوگی اس سے ہم آپ کو اوگت کرائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ووکل فار لوکل کا نعرہ ایک بار پھر دہراتے ہوئے عوام کو اس جانب سنجیدگی سے غور کرنے کی اپیل کی ہے۔ اپنے حالیہ ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات ساجھا کرتے ہوئے انہوں نے کشمیر میں تیار کی جانے والی گھاس کی چٹائی وگو پر بھی تفصیل سے اظہار خیال کیا، اور مقامی دستکار غلام حسین اور ان کی بیٹی تنزیلہ کی سراہنا کرتے ہوئے کہا، کشمیر کے دلدلی علاقوں کی گھاس اور سرکنڈے کی کٹائی کی جاتی ہے، دھوپ میں سکھانے کے بعد چھٹائی ہوتی ہے، اور پھر شروع ہوتا ہے ہاتھوں سے بنائی کا کام۔ یہ چٹائی انوکھی بھی ہے اور ایکو فرینڈلی بھی ہے۔ ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو گرمیوں میں اس سے ٹھنڈک ملے گی اور سردیوں میں گرماہٹ۔ پہلے یہ کشمیر کے ہر گھر میں دکھتی تھی، لیکن پچھلے کچھ برسوں میں اس کا اپیوگ کم ہونے لگا تھا۔ ایسے میں سری نگر کے غلام حسین جی اور ان کی بیٹی تنزیلہ جی نے ایک سنکلپ لیا، دونوں وگو کرافٹ کی پرمپرا کو ایک نیا جیون دینے میں جٹ گئے۔ انہوں نے اس کام میں کئی طرح کی چنوتیاں بھی آئی، لیکن وگو کے سرکشن کا ان کا سنکلپ اڑگ تھا۔ سری نگر کے رہنے والے غلام حسین نے وزیر اعظم کی جانب سے روایتی وگو کے احیاء پر ان کا نام لینے کے لیے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تاثرات یوں بیان کیے۔ میں خوش ہوں کیونکہ آج پہلی بار میرے نام نے لے لیا اس کام کے بارے میں۔ خصوصاً آرزن سے بہت خوش ہو گیا جب انہوں نے سنا۔ اگر میں اس پر محنت کروں گا، میرے آرزن اس کو محنت کریں گا تو یہ اور پھر بھی چلے گا۔ یہ لوگوں کی وساطت سے لوگوں نے پوچھا مجھے کیا خاصیت ہے، میں نے بولا ان کو جو خاصیت یہ ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، جیسے کہ فارم ہے۔ جب پی ایم مودی صاحب نے یہ میرے کے بارے ذکر کیا نا، میرا نام لیا، اس کے بعد مجھے فون آ گیا، بہت علاقوں سے فون آیا، یہ کام تو اچھا ہے، یہ کرو آپ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تنزیلہ نامی دوشیزہ نے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کی جانب سے ان کا نام لیے جانے پر اپنے تاثرات کا اظہار
इन अल्फाज में किया। मैं मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में हमारा नाम लिया। फिर मैं आपको बताऊं कि पहले जो वगू हम इस्तेमाल करते थे, बस ये फकत चटाई के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते थे, शीट्स के नीचे या मतलब ऐसे फ्लोर पे लगाते थे इसको, लेकिन आज इसको हम एज अ डेकोरेशन यूज करते हैं। इससे हमारे क्राफ्ट जो है उसको बहुत वसअत मिलेगी। जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की। माशाल्लाह अब तो ये रिवाइव हो गया। अब तो मोदी जी ने भी इसका अपना जो उनका प्रोग्राम है मन की बात, उसमें इसका नाम लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत आगे जाएगा। मुल्क भर में 26 जुलाई को 27वां करगिल विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब द्रास में करगिल वार मेमोरियल पर मुनक्किद हुई, जहां वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शहीदों को खराज अकीदत अदा किया और एक गुलदायरा उनके नजर किया। उन्होंने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं, यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है, तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। तकरीब पर एलजी मनोज सिन्हा के अलावा फौज के सरबरा जनरल धीरज सेठ और कई मुमताज अफराद नीज शहीद फौजियों के खानदानी अफराद भी मौजूद थे। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में गुज़श्ते दिनों देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब और क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर नीज कई दीगर इदारों की तरफ से 77वां स्टेट लेवल मेगा जॉब मेला मुनक्किद किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों की तवक्कात को पूरा करना, उन्हें तरक्की के ज्यादा से ज्यादा मौके दस्तयाब कराना और कौम का मुस्तकबिल संवारने के ज़िम्न में रोजगार मेलों का इनेकाद एक अहम इक़दाम है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस तरह के मौक़ों से इस्तिफादा करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। एलजी ने कहा कि कारखानादारी में नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ाना एक खुश आइन बात है। नौजवान और संभावनाओं से भरी इंडस्ट्री एक ही छत के नीचे मिलते हैं, तब नए जम्मू कश्मीर की नींव और मजबूत होती है। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से, नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि आप केवल नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवार नहीं हैं, आप भारत के भविष्य के निर्माता भी हैं। आपके हाथों में केवल अपना करियर नहीं बल्कि देश के विकास की दिशा भी सुरक्षित होने वाली है। आप स्किल इंडिया की शक्ति हैं, डिजिटल इंडिया की पहचान है और आत्मनिर्भर भारत के सच्चे वाहक भी हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी कंपनीज के प्रतिनिधिगण से भी कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी केवल योग्य वर्कफोर्स का चयन करना नहीं है, आपको नौजवानों का मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और सहयोगी बनने की जरूरत है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस रोजगार मेला से खिताब किया। उन्होंने नौजवानों के लिए रोजगार के नित नए मौके फराहम करने और इन मौके को वुसअत देने का अपनी सरकार का अज़्म दोहराया। उन्होंने कहा कि अगरचे सरकारी नौकरियां ही बेरोजगारी का वाहिद हल नहीं है, तमाम हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर में नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा वसाइल पैदा करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि तालीम सिर्फ किताबों और इम्तिहानी हॉल्स तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये खेल के मैदानों में समाज के हर एक पहलू तक पहुंचकर तर्ज जिंदगी का एक हिस्सा बननी चाहिए। SKICC श्रीनगर में डल के किनारे पर रीडिंग मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि कुतुबीनी हमारे ख्यालात को तकवीत बख्शती है, जबकि दौड़ने से हमारे जिस्म मजबूत हो जाता है और ये दोनों मिलकर समाज को मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। ये ध्यान है कि जब इस नीति की कल्पना की गई थी तब उसके केंद्र में एक दूरदर्शी विचार था कि शिक्षा केवल पुस्तकों के पन्नों और परीक्षा के कक्षों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ना चाहिए। ये रीडिंग मैराथन उसी सोच का एक उदाहरण है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर का जायजा लेते हुए तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि वो दस्तयाब हुकूमत के बरवकत और मुनसिफाना तसर्रुफ को यकीनी बनाएं और बुनियादी ढांचे और इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने हुकूमत की दस्तयाबी के बावजूद इसे सरफ न करने को नाअहलियत से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर और जम्मू में भी तरक्याती कामों के लिए काफी वक्त मौजूद है, लिहाजा तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए।
इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ते दिनों जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में संगम इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके वहां क्रिकेट बैट तैयार करने के अमल और इस सन्नत से वाबस्ता अफराद को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। न्यूज रील से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम सब यहाँ आए क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मेंबरान से मिलने के लिए, और एक तो रॉ मटेरियल के लिहाज से कुछ फैसले लिए गए और दूसरा इनके अशोर्ड पावर सप्लाई का एक मुद्दा था, उसके लिए भी हमने एक हल निकाला है। तीसरा, यहाँ काम करने वाले बहुत हैं, कभी कभार एक्सीडेंट होता है, जख्मी हो जाते हैं, इनको फिर बिजबिहाड़ा पहुंचाना टाइम लगता है। इनकी डिमांड रही है कि डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ एक फर्स्ट एड सेंटर कायम किया जाए ताकि इनको फौरी तौर इलाज यहीं पे मिले। तो इन सब चीजों के लिए इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। और आखिरी चीज मैंने इनसे कहा कि यहाँ पे साल 2004-2005 में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना था, लेकिन उसका ठीक तरह से इस्तेमाल हुआ नहीं। अब इनको कॉमन फैसिलिटी सेंटर की जरूरत है या नहीं है, किस तरह की होनी चाहिए, इसके लिए मैंने क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मेंबरान और ऑनरेबल एमएलए से कहा हुआ है कि वो आपस में बैठ के बात करें और फिर डिपार्टमेंट से कहें कि इसमें हमें आगे क्या करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ते दिनों गांधरबल का भी दौरा किया और वहां लोगों के साथ बातचीत की और एक जायजा मीटिंग में जिले में कलीदी नोयत के तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में न्यूज रील से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीच बीच में काम के रफ्तार और नए कामों की क्या जरूरत है उसके हवाले से आता जाता रहता। कुछ ऑनगोइंग वर्क्स हैं जिनकी रफ्तार में तेजी लाने की जरूरत थी, कुछ पब्लिक के डिमांड्स थे जिन पे शुरू करना था, और यहाँ पे जो ट्रैफिक के हवाले से बस अड्डे से अस्पताल जो एक ऑल्टरनेट रोड बनाई जा रही है उसका मुआयना करने के लिए आया था। फिर यहाँ कुछ लोगों से मिला, काम अपना कर लिया, जितने काम हाथ में लिए हैं अभी उनको मुकम्मल कर लेंगे। सरकार ने जनूबी कश्मीर के शुपियान जिले में वाक़ा तारीखी जामे मस्जिद की तामीर और तजदीद नौ के लिए 6 करोड़ 5 लाख रुपए मालियत के मंसूबे को मंजूरी दी है। हुकूमत ने रामबन में वाक़ा सरहोदर चामुंडा माता मंदिर की शान रफ्ता बहाल करने और इसकी तजदीद नौ के लिए भी 10 करोड़ 31 लाख रुपए मालियत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि ये इकदामात जम्मू कश्मीर में अहम मजहबी और सकाफती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ में सरकार के अज़्म की अक्कासी करते हैं। सामईन, पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मौसमियाती तब्दीली के असरात निहायत तेजी से कुराए अर्ज को मुतासिर कर रहे हैं। इस मौसमियाती तब्दीली ने हमारे हिमालयाई खत्ते में बारिशों का अंदाज ही बदल दिया है। मुख्तसर वक्त की शदीद बारिश और बादल फटने के वाक़ात अब आम हो गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने जिस सूरत हाल का मुशाहिदा किया उसके मनाजिर हमारी आंखों में अभी भी महफूज और ताज़ा हैं। लिहाजा इंसदाद सैलाब के इकदामात अब पहले से भी ज्यादा जरूरी बन गए हैं, जिनमें किसी भी तरह की कोताही और देरी का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हालिया शदीद बारिशों, फ्लैश फ्लड्स और लैंड स्लाइडिंग ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वादी आइंदा किसी बड़े सैलाब से निमटने के लिए वाकई तैयार है। ऐसे वक्त में तकरीबन 2022 करोड़ रुपये के फ्लड मैनेजमेंट मंसूबों का तकनीकी इख्तिलाफात के बाइस रुका रहना न सिर्फ इंतजामी तशवीश का बाइस है बल्कि अवामी सलामती, मईशत और बुनियादी ढांचे के लिए भी एक संगीन इंतबा है। तकनीकी इख्तिलाफात किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन इख्तिलाफात के हल में बरसों की ताखीर मुनासिब है। आज मौसमियाती तब्दीली ने पूरे हिमालयाई खत्ते में बारिशों के अंदाज को गैर मुतवक्को बना दिया है। मुख्तसर वक्त में शदीद बारिश, बादल फटने के वाकयात और अचानक आने वाले सैलाब मामूल बनते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में फ्लड मैनेजमेंट अब सिर्फ एक तरक्याती मंसूबा नहीं बल्कि कौमी और इंसानी सलामती का मसला भी बन चुका है। हालिया बारिशों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जानी व माली नुकसान ने इस खतरे को मजीद नुमाया कर दिया है। इस ताअत्तुल का एक माशी पहलू भी है। मंसूबों पर पहले ही करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन जब तक मुकम्मल निजाम फाल नहीं होगा जुज़वी तामीरात अपनी मतलूबा इफादियत हासिल नहीं कर सकती हैं। दूसरी जानिब शहरी मनसूबाबंदी भी इस मसले का एक अहम हिस्सा है। श्रीनगर और वादी के दीगर शहरी इलाकों में आबादी में इजाफा, गैर मनसूबाबंद तामीरात, आबी गुजरगाहों पर तजावुजात और वेटलैंड्स के सुकड़ने ने कुदरती निकासी आब को महदूद कर दिया है। इस मसले का एक मुस्बत पहलू भी है। हुकूमत ने फ्लड रिस्क में कमी के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है और मुतअद्दिद हिफाजती बांध, दरिया के किनारों के इस्तेहकाम और दीगर इंजीनियरिंग काम
مکمل یا پیش رفت کے مراحل میں ہیں، تاہم چند انتہائی اہم منصوبوں میں تاخیر پورے نظام کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ فلڈ مینجمنٹ منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے تاکہ ترقیاتی، ماحولیاتی تحفظ اور عوامی سلامتی ایک دوسرے کی تکمیل بن سکیں، نہ کہ ایک دوسرے کی قیمت پر حاصل ہونے والے اہداف۔ ریڈیو نیوز ریل کے لیے سری نگر سے میں سعید مبشر رفائی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز ریل کا ہمارا آج کا شمارہ ختم ہوا۔ نگران اعلیٰ اشفاق شاہ، ترتیب و تہذیب کوشکی کشپ، مدیر اور میزباں شبیر الزماں، ریکارڈنگ ایڈیٹنگ آصف بشیر، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی سری نگر۔